So we'll build on our discussion, um, but I just want you to focus on this one formula, this one. uh, so I'll write it down on the next page so that you can focus. So what we have is that you imagine some, let's say this is a boundary, and on the boundary you imagine some inlet, yeah, or exit, it doesn't matter. So it can be either an inlet or an exit. And let's say the area there is A. Yeah. So you have some area, and you have a body of fluid um, entering or leaving with some velocity Vn. Yeah. And we are only focusing on one dimensional. So normal would mean the normal velocity, perpendicular. So if this is what is happening, then definitely the rate of mass, and this dot means rate of change of mass, actually the crossing the boundary, will be density times this normal velocity of the fluid or whatever is actually crossing the boundary. And then you have this area, differential area, and then you have a double integral over the area. What you need to keep in mind is that why do we have this dot? But before that, let's try to make sense of this formula without deriving it. So definitely mass will be, mass is um, density times volume. So you see density, that's no problem. So whatever is actually other than density in this formula must be volume. Yeah. So now volume is area times something. So you can say, okay, area is there. So anything other than area and density must be volume. But we have m dot, which means that it's mass per unit time. Yeah, mass per unit time. So then this is density times volumes per unit time. Yeah. So density is covered, volume is area times length, area is covered, so it means that the remaining part, which is Vn, it must be, without this time it would be length. Yeah, because volume is, what is volume? It is length times area. Yeah, area is already there, and length divided by time is velocity. So this is how you make sense of this, and if you make a mistake you can even find the mistake this way. That was the easy part. By using definition of volume, density, mass, you make sense of it. But there is another pressing question which you need to answer here, and that is the dot thing. So the dot is differentiation with respect to time. Yeah, it means that you are differentiating with respect to time. Now this mass, this m dot is only at the boundary, so do not confuse this with the what is happening inside the system. Yeah. So that's why it's important to know the name. The name of this will be mass flow rate. Mass mass flow rate means that the dot is because of the flow, and this can only happen at the boundary. This should not be confused with something. You will again see a dot there, but that will have a different mean. If I now replace the flow with accumulation, mass accumulation rate, what would that mean? Can somebody tell me?
that would mean the rate of change of increase of mass within the system. Yeah, and if that is negative, that will mean that it is the rate of change of decrease. So that will be something for the system. Now this dot is only for the boundary. Now we need to now understand which thing in this formula is responsible for that dot. So if I now ask you, is it dA? Is it dot because of the dA? Yes or no? Hmm? सर Because you're, वेलोसिटी की वजह से yeah, it's because of the velocity, because area, you're integrating with respect to area. Density is just a property. So it's only because of the velocity. Now this only means that if the dot is because of the velocity, then it represents the flow only. So if it stops flowing, yeah, if there is no velocity, if the velocity is zero, then this dot is zero. So this is not a variation of mass with respect to time, just because something is changing. Yeah, normally when you see a dot, some property is changing, like temperature is changing with time or pressure is changing with time, and nothing needs to flow. Yeah, so for example, a property can change with respect to time without any flows involved. This is specifically, the dot is related to flow. This is very important. So let's get back to that. Okay, one more thing about this formula before we move on. For simplicity in this course and in many actually practical problems, the details of how this integrand changes, because why do you need to integrate this quantity? Yeah, if this, for example, if this quantity were constant, what would you do? You would not integrate, you will simply multiply rho times v n times the total area. Now the reason you see this integration is that these quantities can change not over time but over the area. So it can have one value here, it can have another value here. Now that is too much detail for first course in thermodynamics. So what we'll assume is the assumption that all the intensive properties, all the intensive properties uh, don't change, don't change over the area. We're not talking about change with respect to time. We're talking about with respect to area. So if you move along this area, across this area, yeah, the properties will not change. In that assumption, and this assumption is called the one-dimensional flow assumption. What? One-dimensional flow assumption. So there you simply, this will be rho times Vn times A. No integration needed. So if it is actually something is changing, you will only take the average value, because the mean value, if you remember mean value theorem, even if it is changing with respect to area, you just take the average value, and then it will be, if rho times V is the average value, you can multiply it. So in the rest of this chapter, you will not see this integral. You will simply see, let me go back to that page. Instead of this integral, you will see simply rho times V times A. Yeah? And this n will not be needed. Why? Because we assume one dimensional, so it will be automatically, yeah, uh, facing the area. Is this clear? So you just remember rho times velocity times A. And that's why in all the other formulas you see rho times A times B. And this is the other form. That was one important point. Uh, this example, I did not spend too much time on this example, but I just want you to, I think it was not, this was simple, yeah. This was very easy, so let's not spend, uh, maybe I need to talk about something so that you connect it,
because you guys sometimes struggle when you are expected to connect one chapter with the other. So we will only discuss it from that angle. Yeah. So if you can see this, let's see what is required. So you have a feed. I'm just reading the question now. Yeah. A feed water heater operating at steady state has two inlets and one exit. At inlet one, water vapor. So it's important that you note vapor, because maybe you have to see the table at some point. So at this pressure and this temperature, and the mass flow rate is also given. At inlet 2, liquid water. You note this down. So you have different phases. Yeah. At inlet 1, you can just note this down. This is vapor. Sorry, it was no. This is vapor, and this one is liquid. Yeah. So that should guide you which table you are looking. And okay, pressure, temperature is given at that area. What you need to know is that temperature, pressure is given at inlet 2, but not at inlet 1. Yeah? And what else is required? Now, saturated liquid at this pressure leaves at exit 3 with a volume flow rate. Yeah? Determine the mass flow rates at inlet 2 and at the exit in that specific unit, and the velocity at inlet 2. Okay, because the velocity is not given at inlet 2, so that's also required. Yeah. So the thing which, I mean, I'm not repeating the obvious thing. Yeah, you have seen the formula. M dot is equal to, so what we just learned a while ago is that M dot at any exit or inlet will be rho times A times velocity. And because we don't want to see this rho here, I can replace this rho with 1 over V, yeah, with 1 over specific volume. सब निकल जाए, ठीक है? So you see, this is something very standard. So if you this equation has different quantities. If something is missing and other things are given, you can use this equation. That's not the issue. So definitely in this question, small v is not given. If you see the question, only area is given, velocity is given, m dot is also given. Small v is not given. No, m dot is m dot given? M dot is not given. Actually, yeah, m dot is given. This is m dot 40. Which means that if you want to, but for inlet 3, yeah, you are given volume flow rate. This is important. So this quantity, which is 0.06, yeah, cubic meter per second, this is not equal to m dot. This is equal to the rate of change of volume. Let's say, yeah, this volume dot. Now, how do you turn the rate of change of volume to mass? That will involve small v, you know. So density, yeah. So if you have rate of change of volume and you multiply it with density, you will get the mass flow rate. Yeah, this is standard. And density we know is 1 over v. Yeah? 1 over v, which means that we need to somehow use v. Now, where will the v come from? V is a property. Yeah? And that property will come from some table. And you know which table. Yeah, if you know the phase. Wait a minute. सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है. ये मैंने स्टार्ट में रिकॉर्ड प्रेस किया है. अब आपको जो पॉइंट है वो आपको समझ आ रहा है ना कि
इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन as far as mass flow rate calculation is concerned, yeah, so you are required to calculate mass flow rate at, let's say, some inlet. For that inlet, you will need to know actually for exit 3 you are given the rate of change of volume. Now the rate of change of volume can be connected with the mass flow rate through specific volume. That specific volume has to come from some table, and at exit 3 what is the phase? It is saturated liquid, yeah, saturated liquid. Now notice one thing. There I wrote VOL because I know V can be confused with volume, yeah. Here, I mean, if you wrote italic V, but it's not possible to distinguish between italic V and straight V. So I am just writing VOL, but in this example, what is given here is A times V, and that V is velocity. Yeah. So area multiplied by velocity will give you the rate of change of volume. If you think about this, yeah. Volume is area times distance, and if you replace distance with velocity, that will mean that you have differentiated volume. So that will be your volume flow rate. So if volume flow rate is given and you want to know the mass flow rate, yeah, mass flow rate is connected to volume flow rate through density. Density has the reciprocal, has a specific volume as a reciprocal, and specific volume can be actually searched in the table for saturated liquid. And that brings you to chapter, which was the chapter before? Chapter 3. And of course, this equation is only the mass balance, because you will not be using table in each case. So for exit 3, you use the table. Yeah, this was a consequence of table. Yeah, table. But for exit 2, you can simply use mass balance. Why? If you know mass flow rate at inlet 1, and if you know mass flow rate at inlet exit 3, yeah, then the overall mass balance allows you to connect M2 dot with the other two. Yeah. So you will sometimes need to use the table, and you will sometimes need to use the mass balance. That was the important part of it. Now I want to give you an assignment based on this example, because we discussed this example last time in detail. So there is, as far as the solution of this example is concerned, that was not difficult, because you use mass balance. You just use mass balance. This is mass balance. The rate of accumulation of mass control volume. Mass of control volume is the mass flow rate at the inlet minus the mass flow rate at the exit. And you also know that because this level inside the tank is changing with respect to time, yeah, so the volume is changing with respect to time, and if volume is changing with respect to time, mass will also change with respect to time. So that brings you to this differential equation, and so on, you solve that. But what I want you to do in this assignment is that this example mixes two things. I told you a symbol will either have units or it won't have units. You can't mix the two, if you remember that. So this example, I'm just sharing the problem with you, and you have to rework this example from scratch so that there is no problem with the symbols. Every symbol has proper units and there is no inconsistency. Yeah? So let me show you where the problem is. If you read this statement,
what is this one telling you? Where L is the instantaneous liquid height in feet, that means that will L have units or not? Hmm? When No. you write in feet, it cannot have units, yeah. So L has to be a number, yeah, a number only. Now, what is written here? This one, me dot equals 9L, yeah. So can me dot have units? Yes, sir. No, but No. look at the equation. It's you multiply L with 9, yeah. Ji. So the way me dot is defined in this statement, it cannot have units. Now you can ignore what is written after that because they don't use any symbols. So it's up to you what symbol you use. That's not the issue. So note this thing down, and now look at this diagram. What does the diagram say? Is this consistent with the paragraph? No. No, because there he writes me dot equals 9L, yeah. So either this is correct or this is correct. They both cannot be correct. Now I leave it to you. अब आपको मैं choice देता हूँ. This is an exercise. आप ये choose करते हैं, ये choose करते हैं, आपकी मर्जी है. लेकिन आप इस example को पूरा solve करेंगे दोबारा from scratch, and I do not want to see any inconsistency like that. ये बात हो गई. दूसरे मैं बता देता हूँ. ये ठीक है क्योंकि ये L ब्रैकेट में इससे लिखा हुआ है. You can think of it as okay L times feet, that is the actual length. अच्छा, यहाँ पे क्या है? A symbol A has units, yeah? Now what is this? What is this equation? Right side पे क्या है? Rho, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Rho is density. When you say rho is density, it must have units. Yes. So Yes. I'm now ticking those which will have units. Okay. Now A has units as per the diagram, yeah. But L does not have units. So now on the right hand side you have three factors multiplying. Two of them have units. The other one does not have a unit. So the left hand side, I don't know. I mean, it's confusing now. So this equation also has a problem. You have to fix this one as well. So आपको समझ आ गई कि इस पूरे क्वेश्चन को आपने आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, but make sure that you are consistent. Whatever symbol you use, it must not have these issues. For example, this equation is wrong. क्योंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे कोई यूनिट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना यूनिट्स हैं, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. इसको आप ठीक करके सबमिट कर दें ट्यूसडे को. ठीक है, ट्यूसडे को आपने मुझे स्कैन अपना वो तस्वीर लेके ना कैमरे से या उस सेल फोन से वो आपने उधर जमा करना है. मैं स्लेट पे अनाउंस कर दूंगा, आपने स्लेट पे ही अपलोड करना है. या आप लोगों के लिए कौन सा आसान है, स्लेट या गूगल क्लासरूम? कौन सा इजी होता है? क्लासरूम इजी होता है. ठीक है. ये किसका माइक? अच्छा, ये मैसेज किसने किया है? शो कन्वर्सेशन. अच्छा, वो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, कोई इशू नहीं है. सो दैट्स डन. अच्छा, अब वो जो मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करते हुए स्ट्रेस किया था कि जो m डॉट बाउंड्री पे, अभी आपको अगर मेरी वो वाली बात समझ आ गई है ना
So you can now answer me this question. If you look at this equation 4.9 and सर just स्लेट भेज रहे हैं सर, स्लेट पे अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है ठीक है ठीक है मैं कर दूंगा. If you look at this diagram, you have this control volume. Yeah? So W dot is at the boundary, of course, W dot. Q dot is at the boundary. Yeah. And remember this dot, Q dot and W dot, there the dot is also at the boundary. And now this MI dot and ME dot, they are also at the boundary. Yeah. So it's because of the flow. Have you noticed that on the left hand side, he has not used a dot, although mathematically that would be perfect. कोई मसला नहीं, आप उधर डॉट लगाएं या ना लगाएं. तो आपको कुछ समझ आ रही है कि ये इसने क्यों लिखा हुआ है? इसमें he wants to help you understand this. ये जो डॉट है ये ECV किस चीज की क्वांटिटी है? It's the energy of the system. अब ये जो डेरिवेटिव है ये फ्लो की वजह से नहीं है, ये तो अब सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So the system is not flowing anywhere, it's not going anywhere, and it's still changing. वो अलग बात है कि वो change right side पे flows की वजह से ही हो रहा है, लेकिन can you now see the difference between this derivative on the left hand side and all the derivatives on the right hand side? Can you see the difference now? No, sir. जो right side पे जितने भी dots है वो boundary वाले dots हैं, वो flow को represent कर रहे हैं. जी. That, for example, Q dot doesn't mean that Q is a quantity somewhere which is changing with time. No, Q dot represents the flow at the boundary. जी. वो जैसे वो अभी जिस तरह वो velocity आप बता रहे थे ना कि rho times V, rho times velocity times A. तो इस velocity की वजह से ये m dot आ रहा है ना, me dot और me. ये वाली चीजें right side के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन left side पे जो d by dt है, this is rate of change of a quantity inside the system. अच्छा. That does not represent the flow of something. Okay, sir. Because that's a quantity which is changing with this time. ठीक है ना? तो ये क्योंकि ये बाउंड्री पे नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर हो रहा है. हाँ, इसकी रीजंस बाउंड्री है. ठीक है. अच्छा, अच्छा इसको जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि अब आप राइट साइड पे देख लें कि ये टर्म्स तो आपके लिए आसान है समझना. For example, you should not have any problem with this part. Yeah. So if you think about, for example, this part, and you have m dot, mi dot times, let's say ui. Ui is the specific energy. Now you are multiplying specific energy with mi dot, and then you are calling this the rate of flow rate of flow of what? Internal. आप ये कह रहे हैं कि इतनी इंटरनल एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है. वो क्यों क्रॉस कर रही है? कि वो मास फ्लो, बाउंड्री पे जो मास फ्लो हो रहा है उसके अपने साथ एनर्जी को भी लेके जा रहा है. अब इसमें यू डॉट क्यों नहीं है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ. If I go to the blank page, ठीक है, let me just write this down. Normally, if I say m times small u will give me capital U, you agree with this? So if I say u dot, what will I normally get as per calculus? It will be mu dot plus you agree with that? जी सर. तो अब यहाँ पे उस इक्वेशन में उसने सिर्फ ये दिया हुआ है, ये इसने जीरो किया हुआ है. Reason? What is the reason for that?
क्योंकि what would this represent, this thing? This would represent that U is changing with respect to time. That is not the जी case. That is not the case, okay? It's only happening because of the flow, और वो जो velocity है वो इसको change करेगी, वो इसको change नहीं करेगी, तो intensive property है। अच्छा अब ठीक समझ आ है रही है आपको? ये U डॉट क्यों नहीं है उसमें? U डॉट तब होता कि अगर बाउंड्री पे ये जो U है ये भी चेंज हो रहा होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो हमने assumption शुरू में किया था कि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? ओके सर So that's why in that equation the dot is only placed at the M and there is no dot here. There is no dot here, ठीक है? क्योंकि बाउंड्री पे वो सिर्फ फ्लो की वजह से हो रहा है और फ्लो का रिजल्ट m डॉट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? बाकी अगर आप देख लें इसमें फर्स्ट टर्म स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, सेकंड टर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। यू नीड टू नो द नेम, ओके? m निकाल के स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये तीसरा क्या है? G टाइम्स Z, टेंशन एनर्जी या स्पेसिफिक लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिक एनर्जी, ओके? तो अब ये याद रखना बहुत आसान है, स्पेसिफिक क्वांटिटीज जब आप m से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट द एक्चुअल क्वांटिटी, बट इफ यू मल्टीप्लाई देम एट with m dot, that will represent the flow rate of that quantity, yeah, at the boundary. Now yesterday we also discussed another thing, and that is the work transfer rate, W dot, you can also call it power. We can split this into, let's say if this work dot is only a result of flow, if it's only a result of flow of some fluid, yeah. Now fluid का एक pressure होगा P, so I'm just writing P to remind myself that I am calculating the work transfer rate which is because of the pressure of a flowing fluid, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा? You know work dot is force times volume, velocity, force times, we have seen this so many times, force times velocity is work dot or power. Now force, you know, is pressure times area, agreed? So, or maybe instead of this P, if I just say E here at some exit or at some inlet, whatever. So I say PE, pressure at that exit, yeah, area at that exit, and velocity at that exit. So rho times, P times A times velocity will give me the work transfer rate at that particular exit, which means that I can, maybe I should do it on the other page. I want to break down the actual work transfer into different parts. So let's say I have one exit, for simplicity, I have one exit and one inlet. Later on I can change this, one inlet. अब exit पे मुझे पता है कि I can represent the work transfer. This work transfer will be the total, yeah. Total. Total mean there is no one inlet पे भी हो आ जाएगा, one exit पे भी आ जाएगा, or anything other than that. Anything other than that means that work transfer may or may not be because of mass transfer. Mass transfer is one way of work transfer. जिस तरह हवा
आके आपको जब हिलाती है गाड़ी को, तो वो मास ट्रांसफर इज गिविंग यू वर्क ट्रांसफर. But work transfer can arise from other factors as well. Yeah, rotating shaft, electrical work, magnetic work, chemical work. You see, they don't involve any mass transfer. So we want to have pressure, area times velocity, and if all of this is at the exit, I will have work transfer at the exit. Yeah, because of the mass transfer. Then I can have the same quantity, pressure, area, velocity at the inlet, that will give me the mass transfer arising from, sorry, the work transfer arising from mass transfer at the inlet. Can you now see that one of them will be plus and the other will be minus? This will be plus because when mass transfer is at the exit, the system is doing work, that is positive. When the mass transfer is at the inlet, work is done on the system, so that is minus. Now anything other than this will be work transfer not involving mass transfer. So I just call this W dot CV. CV का मतलब यह है कि वो कंट्रोल वॉल्यूम का कोई और तरीका है और मास ट्रांसफर नहीं है. This is how you can break down the work transfer into forms that can be related to mass transfer and something that is any form of work transfer other than mass. ठीक हो गया. अब आपको पता है कि ये फॉर्म डिजायरेबल नहीं है क्योंकि हमने जो अभी ऊपर देखा था, you know, we want to modify the mass balance. Yeah, so mass balance में हमें पता था कि हमने इन दो टर्म्स की जगह m dot times something लिख दिया, m dot times something, m dot times. So it would be cool if we could express this thing, yeah, these two terms, so that mass transfer is visible. Now mass transfer is not visible here, but we know something. We know that the mass transfer at the exit can be related to what? Do you remember that? It will be, it was rho times A times velocity. Remember that? Yes, Yeah. sir. Now, we still don't want to see the rho, so I can remove that, and it will be 1 over specific volume at the exit. Now the same can be said for the inlet. Yeah, inlet. Now what do you see in the formula? In the formula you only see A times velocity. Yeah, so if I take this small v to the other side, what will happen? Can I get that? So A times velocity at the exit is m dot times specific volume at the exit. Agreed? And the same can be done for the other one. Yeah. What's the advantage of this? I can now write this work decomposition as work dot of other forms, and now this will have this m dot form. M dot times m dot times specific volume times pressure. Pressure तो इसमें आएगा ना, pressure तो कहीं नहीं जाएगा, at the exit, and m dot times pressure times specific volume at the inlet. और इसमें एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है.
So do you now see that it's in the same form? Yeah. We can now see m dot in this. अब ये चीज आपने नोट करनी है कि how can I rewrite this equation 4.9? I can now give you a scheme of what we are going to do next. If I split this W, remember it has a minus sign. So वो जो CV है उसको मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ ये बच जाएगा CV, और जो इसके साथ दूसरा टर्म है जिसमें m डॉट और स्पेसिफिक वॉल्यूम और प्रेशर आ रहा है, मैं चूंकि इस m डॉट के साथ वो वाला एक पार्ट इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा. So I'll have a new equation where the contribution to work transfer from mass transfer will be placed here, and here I'll be left only with work transfer which has reasons other than mass transfer. ये बात समझ आ रही है? ये अगर आपको बात समझ आ गई तो now you can see कि this is the new equation. अब इसमें देखिए क्या आपको नजर आ रहा है फर्क. ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंस्टेड ऑफ W डॉट नाउ यू हैव W डॉट CV नीचे लिखा हुआ है. CV का मतलब ये है कि ये वर्क मास ट्रांसफर इसमें शामिल नहीं होगा. इसमें रोटेटिंग शाफ्ट हो सकता है, केमिकल वर्क हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है. और वो जो PV टाइम्स M है वो कहाँ पे आ गया? वो PV टाइम्स MI, PV टाइम्स ME, और P और V के साथ भी E आ गया. क्लियर? अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि U के साथ, स्मॉल u के साथ PV आ रहा है और उसी U के साथ PV आ रहा है. So it turns out that internal energy alone is not enough to represent the boundary phenomena when flow is involved. यहाँ पे ये terms इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि fluid flow हो रहा है, और flow भी ऐसी चीज का जिसमें pressure involved है. इसमें अगर ये fluid ना होता और let's say solid होता, क्या होता? सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, I need to make sure that you follow what I'm trying to say. अगर ये fluid के जगह rigid body move कर रही होती तो ये PV होता हमारे पास? नो सर. क्योंकि वहां पे प्रेशर, अब सॉलिड बॉडी एज ए होल मूव करती है, उसका प्रेशर नहीं होता. तो वो कहाँ पे आता? वो मुझे बताइए वो किस टर्म में होता अगर ये सॉलिड बॉडी फ्लो कर रही होती? मुझे बताइए इस इक्वेशन में उस कौन सी जगह है? वो इसमें आता, काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि a body moving as a whole will carry kinetic energy. ठीक है. So ये आपको मतलब you have to be very clear कि fluid flow जब involved है, so internal energy alone is not enough, so we have to add something to that. और अब आपको, does it remind you of something? What is this quantity? U plus PV. क्या है? You know it from chapter 3. एंथैल्पी तो नहीं? Enthalpy. Specific enthalpy to be more precise. क्योंकि m dot बाहर है तो specific enthalpy. So now you see why specific enthalpy is so important. It is the only way to represent the boundary phenomena for fluid mass transfer. Yeah. So इसके बाद हम चूंकि अब इसमें मास ट्रांसफर में टिपिक एप्लीकेशंस में हमेशा मास ट्रांसफर में फ्लूइड तो होगा ही होगा, ठीक है. Can you now give me an example where fluid as well as solid
is crossing the boundary. आपने जब ये आंधी होती है ना बहुत ज्यादा तेज, तो उसमें आपको क्या अनयूजुअल नजर आता है? आर्म विंड में और आंधी में वो रेत भी ऊपर चला जाता है ना। कभी देखा है सैंड आपको लगता है फिर खतरनाक भी होता है? जी सर, देखा तो है। सो दिस विल बी दैट उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसमें आएंगी, और जो फ्लूइड है वो इस पीवी में आएगा। Yes. So to cut the long story short, we will use small h for that. ठीक है ना? So u plus pv is conveniently represented in a single quantity. अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि s के बाद इस चैप्टर में हम h को ही जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, u pv अलग से उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। और ये हमने अभी पूरी कहानी समझी है सिर्फ वन एग्जिट और वन इनलेट के लिए। वन एग्जिट, one inlet. In general, you can have many exits, many inlets. So you will have to sum these quantities over all the inlets and over all the exits, plus minus or e. So this is now the most general mass balance. Sorry, not mass balance, energy balance, energy rate balance. So we have replaced the simple energy balance for closed system of chapter 3 into a new form of energy rate balance, which can incorporate mass rate as well. ठीक है ना, mass flow rate. Mass m dot जब भी जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएंगे, you get back form क्लियर हो गया यहाँ तक की? और ये इंटीग्रल फॉर्म आप खुद ही देख लें, ठीक है ना। इसमें यह है कि if you don't want the actual the rates, you have to integrate something and so on. So that is not something. Steady state में आपको पता है कि वो डॉट, वो जो लेफ्ट साइड पे जो है वो जीरो हो जाएगा, वो जो डेरिवेटिव है, and that means that the mass rate n must equal mass rate out, और सारी चीजें वो obvious है। ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले देखा है। Okay, so energy n rate n is equal to energy rate out. You can also write it in this. इस फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं तो एक चीज नोट करनी है कि ये n में ये mi आ गया इनलेट, और एग्जिट में ये me आ गया, और q डॉट और w डॉट में q डॉट इधर आ गया n पे, क्योंकि q डॉट तभी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं जब वो n टू द सिस्टम होता है, और w इसलिए उधर चला गया कि w को हम तब पॉजिटिव मानते हैं जब वो work transfer out of the system होता है. So maybe this 4.19 is more convenient to remember. ठीक हो गया। और ये वैसे ये डिस्कशन आप खुद देख लें, वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है ना, हमारी assumption ये है इस चैप्टर में, वो जो वन डायमेंशनल फ्लो assumption है, फ्लो assumption, उसमें ये है कि जो प्रॉपर्टीज है the intensive properties don't change with respect to time and they don't change with respect to area. तो अगर वो चेंज हो भी रहे हैं तो हम उनका एवरेज वैल्यू लें, सिर्फ ये बात है। We'll take the average value because the assumption is that the variation with respect to time or with respect to area, they don't matter, and these are the practical reason why this assumption makes sense. आपको ये पता होना चाहिए कि ये assumption क्यों लोग करते हैं, ये assumption क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे ये रीजन तो इसने बताई है क्यू सी वी डॉट के लिए, कि वो जो क्यू डॉट, कुछ एग्जांपल में आपने नोट किया होगा कि जो क्यू डॉट सी वी है, सी वी इज फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, इट ओनली मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ए बाउंड्री। सो इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो उसकी ये रीजन हो सकती है। पहली रीजन ये है, क्या लिखा हुआ है, द आउटर सरफेस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज वेल इंसुलेटेड, या दैट इज समथिंग यू नो ऑलरेडी।
दूसरा क्या है कि sometimes there is no insulation but the outer surface area is too small for there to be effective heat transfer. इतना स्मॉल एरिया है कि उसमें आप उसको इग्नोर कर सकते हैं हीट ट्रांसफर। तीसरा क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड दिस लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, probably these three are very obvious for you to understand. The last one is tricky because we don't realize this. Let's say इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, ये सारी चीजें जो है ना, इंसुलेशन भी नहीं है, सरफेस एरिया भी सिग्निफिकेंट है और टेम्परेचर डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट है, फिर भी ये हो सकता है, अगर आप इसको पढ़ लें, the gas or liquid passes through the control volume so quickly. Imagine there is a fast system where the flow is so fast that there is not enough time for significant heat transfer to occur. अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड है तो अब आपको पता है ना कि अब आपको समझ आ गई कि वो फ्लक्स और हीट में फर्क क्या है। जो हीट ट्रांसफर रेट है that is flux, which is small q dot times, नहीं सॉरी ये नहीं है, फ्लक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, we want to know q, yeah, the amount of heat transfer during some period of time. तो अगर you have to integrate q dot with respect to time, yeah, so maybe this q dot is not ignorable, but the time interval in which the control volume is receiving or spitting out some fluid, that is so short that this integral is negligible. That can also happen. Okay. So now we can use this generalized energy balance to understand some simple examples. And the first example to start with is something called a nozzle and a diffuser. ये नाम पहले आपने सुने हैं, nozzles and diffusers? Nozzle आपने कहाँ पे अगर देखा है या सुना है तो what do you understand by this term nozzle? ये मेरे ख्याल में ऑटोमोटिव मैकेनिक्स भी ये वर्ड यूज करते हैं nozzle. Yes, sir. तो एनीथिंग, ये शेप आपने जहन में रखना है, anything where the area at the inlet is larger than the area at the exit. ठीक है, इसको नोजल कहते हैं। तो अब इसका खुद बताएं आप कि imagine a fluid flow in some direction and let's say it passes through something we call a nozzle and it's just a control volume, so we call this control volume. ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रीम है, जो फ्लूइड है, वो हमारा सिस्टम नहीं है, वो इन आउट हो रहा है। हमारा फोकस इस नोजल को समझना है, इस नोजल में इनलेट स्ट्रीम है और फिर आउटलेट स्ट्रीम है। what will this nozzle do to that stream? क्या करेगा ये? what will happen to the velocity? आपके हाल में velocity एग्जिट पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वो तो एक रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना V2 is greater than V1, लेकिन इसके अलावा मुझे बताएं, लेट्स से ना लिखा होता फिर आप क्या कहते? why should it increase? बताएं। रीजन बताएं, रीजन। शायद वो सर फ्लो रेट्स जो एग्जिट और इनलेट पे डिफरेंट है, इसकी वजह से। नहीं, फ्लो रेट से क्या मुराद है आपका? किस चीज का फ्लो मास रेट? फ्लो रेट। मास फ्लो रेट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? मास तो कहीं नहीं जा रहा ना मास जो एंड पर है वही मास आउट पर है ना। इशू ये है कि उसका रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ क्या है, वो आप भूल गए ना। रिलेशनशिप ये था, मास m डॉट मास फ्लो रेट is density
टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इट्स 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब मुझे बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इस नोजल ने उनकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना। अब आप बताएं A टाइम्स V इनलेट पे और A टाइम्स V आउटलेट पे, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो ये कंडीशन है। हो सकता है कुछ केसेस में वो भी चेंज हो। सो हाउ अबाउट AIVI AEVE, these two will be equal if the density doesn't change. Yeah, agreed? Yes, sir. तो अब आप बताइए क्या स्टोरी बता रहा है आपको, एरिया कौन सा लार्जर है? इनलेट का एरिया लार्जर है एग्जिट से। हाँ, तो अब वेलोसिटी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी ना। जी A1V1 क्योंकि is equal अगर to A2V2 ना, जी जी so there is no other way, ठीक है। जी ठीक है सही। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तब तक वैलिड है जब तक डेंसिटी चेंज ना हो ना। सो जी वी नीड, ये तो मैंने आपको बिल्कुल ना वो देसी एग्जाम वो एक्सप्लेनेशन दे दी है। वी वांट टू अंडरस्टैंड इट in all technical details, so we need to have a more sound reasoning. वो ये फिर नहीं चलेगा। अच्छा, what will happen to the pressure? Why is the pressure, इसने लिखा है P2 is less than P1, प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? हम्म, सर एरिया तो कम हो रहा है इसलिए। नहीं तो ये सॉरी एरिया कम हो रहा है तो इससे प्रेशर, व्हाई वुड प्रेशर चेंज? रीजन भी तो बताया ना। हम यहाँ पे हम उसी तरह का एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर को भी हम इग्नोर कर दें, तो बाकी वो जो एनर्जी बैलेंस है उसमें क्या क्या टर्म्स है जो प्रेशर और वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, जरा रिकॉल करें ना उसको। वेलोसिटी के साथ क्या रिलेटेड है उधर? v²/2 था ना, जी और उसके साथ m पेनेट डॉट था, m डॉट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। m डॉट चूंकि इधर भी होगा, m डॉट उधर भी होगा, उसको इग्नोर करें, ठीक। So let's focus on this v² over 2। अच्छा, और इसके साथ ऐड क्या हो रहा था? सर पी वी एंथैल्पी, भी तो है। हाँ एंथैल्पी था ना, जी एंथैल्पी से ऐड हो रहा था, ठीक है। जी और आप बता रहे हैं कि इसके साथ, और ये देखो ना, ये या एक या एग्जिट पे होगा और एक ही के पे होगा, इनलेट पे। तो मैं इसके साथ जी नीचे, मैं इसके साथ 1 और 2 लिख देता हूँ ना, 1 और 2। और आपको याद याद भी होगा कि एक माइनस था एक प्लस, वो था ना, एक माइनस जी था एक प्लस था, नहीं ये माइनस था ये प्लस था, ये प्लस था ये माइनस था। और वो जो इस दौरान वो जो बाकी टर्म्स है आपको याद होगा, डब्ल्यू सी बी डॉट, that will involve transfers of work transfer from other mechanism, वो यहाँ पे significant नहीं है क्योंकि नोजल ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। नोजल इज जी नॉट रोटेटिंग, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई मैग्नेटिक वर्क नहीं है। अच्छा, और अगर हम क्यू डॉट को भी इग्नोर करते हैं तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट? दिस शुड इक्वल व्हाट? जीरो जीरो, ठीक है। अगर हम स्टेडी स्टेट यहाँ पे एज्यूम करें, जी क्योंकि जीरो का मतलब, अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब यू आर assuming that properties inside the change with time। हम समझ रहे हैं कि जी नोजल इतना बड़ा नहीं है कि इस दौरान कोई ट्रांजिएंट्स आ जाए ना, तो लेट्स जी इग्नोर स्टेडी स्टेट। इन सारे एग्जांपल में स्टेडी स्टेट assumption है और सिर्फ। अब आप बताएं क्या होगा। अब देखो ना, जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी itself is 2 times small u
जो U है, U आपको पता है इसका ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से है और उसका ताल्लुक फिर जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप उसमें इग्नोर करें कि U1 और U2 में ज्यादा फर्क नहीं होगा, सो P टाइम और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको पता है वो भी अगर आप एज्यूम करें कि यहाँ पे डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, तो you can say that okay, larger enthalpy means larger pressure, yeah? Yes, sir. So अब आपको पता है कि enthalpy representing pressure in all these simple desi added to kinetic energy, this quantity must equal, क्योंकि अगर equal to 0 मैं कर दूं तो दोनों equal हो जाएंगे। अब अगर ये Yes. so in other words, one is kinetic energy and the other is flow energy. इसको वैसे कहते हैं flow energy। ये जो एंथैल्पी वाला टर्म है ना, इसका है फ्लो वर्क, जी। इसको कहते हैं फ्लो वर्क, आप याद रखें। एक्चुअली Okay. इट्स वर्क ट्रांसफर रेट, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें उधर डॉट लेफ्ट साइड पे डॉट था ना, सो Yes, sir. या सो दिस H represents the flow, नहीं इसमें मेरे ख्याल में PV है, PV H नहीं PV is the flow work transfer rate. So if the velocity is increasing from inlet to the outlet, this equation dictates that the enthalpy must decrease, yeah? Because the total is the same, total doesn't change. So enthalpy must decrease, which means pressure must also. अब समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा, ये तो मैंने बताया है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ और ये एनर्जी बैलेंस। इसको जरा एक और चीज से देखें। Now I'm giving you a reason which is much simpler and very easy to remember. और यहाँ पे इसलिए भी आपको बताना जरूरी है कि जो आपने एक टर्म यूज किया होगा लेमैन की जो लैंग्वेज है ना, लेमैन ऑन द स्ट्रीट, वो इतनी पावरफुल है कि जो हर बंदा यूज करता है, तो उससे साइंटिस्ट और इंजीनियर को खुद को डिस्कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आपने कभी इस तरह की चीज देखी होगी नोजल, और वैसे गार्डन होज आपने नाम सुना है? गार्डन होज, जी सर। गार्डन होज में आपने देखा होगा कि अगर आप उसको प्रेस करते हैं, ये एक पाइप है ना, और आप उसको प्रेस जी करते हैं जी। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ना, वो पानी यस ज्यादा। सर। तो हम वहां पे, अब मैं देसी लेमैन लैंग्वेज पे आता हूँ, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं कि ये पानी किस से बाहर जा रहा है? हम कहते हैं ये प्रेशर से बाहर जा रहा है, यस। and that is utter nonsense. Let me write this down. Utter nonsense. क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है, यस सर। प्रेशर इनसाइड पे ज्यादा है, आउटसाइड पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो असल में क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी इन और काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर कहना गलत है, ठीक है? ये आप ध्यान में रखें। यू आर इंजीनियर्स एंड यू शुड नॉट बी मेकिंग दैट मिस्टेक। अच्छा, ओके। ये बात याद रखने के लिए एक और मैं टिप आपको देता हूं कि इसका ताल्लुक, नॉर्मली तो ये आप किसी को समझा नहीं सकते ना कि एक्सट्रीम है जो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई, आप कैसे कह सकते कि उसका प्रेशर कम हो गया? तो इसको आसान लफ्जों में समझना ये है कि प्रेशर की एक क्वालिटी है जो वेलोसिटी की नहीं है, वो बताएं। और मैं बात कर रहा हूं फ्लूइड प्रेशर की। इसकी फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? वो होता है हाइड्रो, मैंने एक वर्ड यूज किया था, हाइड्रोस्टेटिक होता है, या वो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज की वजह से होगा, या वो जहां से पानी आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये उसकी वजह से होगा। तो प्रेशर की एक क्वालिटी है, ये जो वेलोसिटी है ना, ये स्ट्रीम किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो बता रहा है राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब ये वेलोसिटी सिर्फ लेफ्ट टू राइट है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं है। एग्रीड? यस सर।
अब प्रेशर के लिए क्या हो कि प्रेशर हर जगह पे क्या होना चाहिए, प्रेशर मस्ट बी द सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। Yes, sir. तो अगर वेलोसिटी को हम प्रेशर कह दें तो आप कहां फंसेंगे, इस साइड पे तो आप कह सकते हैं कि यार ये हाई प्रेशर से बाहर आ गया, अगर आप उसको कह दें। अगर मैं यहाँ पे ऊपर एक सुराख कर दूं इस नोजल के इस जगह पे, तो अगर ये वेलोसिटी प्रेशर होती तो ये पानी ऊपर जाएगा, नहीं जाना चाहिए ना फिर। नहीं। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ये ऊपर जाएगा फिर भी, जी। तो वो किसकी वजह से जा रहा होता है वो पानी, वो प्रेशर जैसे कि प्रेशर की वजह से। दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रेशर। प्रेशर डज Yes. नॉट रिक्वायर द फ्लूइड टू बी मूविंग। ये अगर जीरो वेलोसिटी भी होती है फिर भी ऊपर जाएगा। Yes, sir. पाइप में कोई फ्लो नहीं है, सिर्फ पानी भरा हुआ है, आप खोलें फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रेशर डज नॉट नीड। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप दीज टू थिंग्स सेपरेट। वो इक्वेशन में भी इसलिए वो डिफरेंट है। वो इक्वेशन पे मैं दोबारा जाता हूँ ताकि आप इसको देख लें। ये देखें ना, ये टर्म और है, दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। वो जो प्रेशर है वो इधर आएगा, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। एंड दिस विल बी नॉन जीरो इवन इफ दिस इज जीरो। समझ आ Okay, गई sir. बात? ये Yes, बात sir. समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और इसको यहाँ पे एक और चीज भी बड़ी जरूरी है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टर्म अलग शो किया हुआ है, GZ1 GZ2। यहाँ पे वो क्या होगा, व्हाट इज GZ1 एंड GZ2 वाला फर्क मैंने नोजल में हम ये एज्यूम करते हैं कि इनलेट पे जो कोई रेफरेंस ऑफ जमीन ले लेते हैं, कोई भी सरफेस लेते हैं, उससे इसका हाइट और इसका हाइट दोनों क्या है, सेम है। Yes, sir. अगर वो डिफरेंट है तो वो, अगर लेट्स सपोज आपने इसको टिल्ट किया हुआ है, ऊपर नीचे है, ठीक है ना, तो वो फिर आपको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो इस यहाँ पे इसको यूज ना करें। जी। सो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका फिर प्रेशर से ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बड़ी जरूरी है कि इस प्रेशर का सोर्स आपको पता होना चाहिए। जो पानी जहां से आ रहा है ना, ये प्रेशर किसकी वजह से है, ये जहां से भी आ रहा है वहां पे कोई ना कोई हाइट होगा जहां से नीचे आ रहा होगा। अगर डैम है या कोई ऊपर से पहाड़ से नीचे आ रहा है, कोई भी है ना, तो वो वो जो वेट है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेशर। जी जी बिल्कुल। किसका? आतिफ बेग का मोबाइल नंबर नहीं, वो नहीं शेयर करना चाहता किसी के साथ भी। नहीं, वो असल में उसने इस कंडीशन पे हमने उसको मोबाइल वो नहीं कर रहा था, उसके साथ कोई बहुत पुरानी कहानी है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज सेल नंबर विद एनीवन। ईमेल लिखते हैं, ठीक ठीक। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि प्रेशर का सोर्स क्या होगा? So वेट होगा इस केस में जो नहीं, डैम से ये ये पानी जहां से आ रहा है वहां पे कोई ना कोई वेट इसके ऊपर होगा ना, या कोई पंप होगा, ठीक है ना। द फ्लो इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रेशर, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्लो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो बिल्कुल अपोजिट है उसको डिफ्यूजर कहते हैं, और उस राइट साइड किया हुआ है। सो आई डोंट नीड टू टीच यू व्हाई एवरीथिंग एल्स शुड बी अपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज हो रही है जी। और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो ठीक है रहा है, सर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं एक सुराख यहाँ बनाऊं, if I actually make a hole here, and if I make a hole here, तो इन दोनों में से कौन सा पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, बताएं आप? तो वो जो राइट साइड पे राइट साइड वाला है, और यहाँ पे कम, यहाँ पे जो
लेफ्ट साइड वायर। क्योंकि वो जो असल में जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना, तो वो कहाँ से आ रही है, वो यही कम होके आई है। मास एनर्जी बैलेंस का ये मतलब है कि वो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो वो इट हैज इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। सो प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको वैसे आसान आप लोगों को मैं एक और एनालॉजी देता हूँ, उससे आप ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे इस चीज। एंड दैट इज, you have, let's say you have a electrical power source, yeah, and let's say this is, और मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूँ, कंडक्टर्स, लेट्स से यहाँ पे आपके पास लोड है, लोड, ठीक है। अब आपने नोट किया होगा कि लेट्स से बीच में यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्या ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है स्टेप अप। तो हम यहाँ कहते हैं कि लेट्स से V1 I1, या यस सर। और यहाँ पे क्या होगा V2 राइट। I2। सो ये तो आर्गुमेंट आसान है कि V1 I2 आइडियल केस में इक्वल्स, दे आर मस्ट इक्वल, और फिर जब ये इंक्रीज होता है तो, लेकिन उसका आसान, ये जो नोजल और डिफ्यूजर वाली लैंग्वेज से आप आसान से समझ आते हैं कि ये जो व्हाट वी मीन बाय वोल्टेज इज, आपको पता है वोल्टेज रिक्वायर्स अ फोर्स, वोल्टेज आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है ना। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेट करते हैं, उसको आप वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स है, वो ये फोर्स नहीं है जो 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 चार्जेस को पुश करता है विद इन द वायर। दैट इज नॉट व्हाट वी मीन बाय दिस वी। इसका मतलब क्या है, जो जो अक्रॉस द वायर है, बिटवीन द वायर्स, नॉट अलोंग द वायर्स। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये तो क्रॉस ही होती है सर वायर्स के वोल्टेज। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए समझना जरूरी है कि इट इज नॉट दिस वोल्टेज विच इज ड्राइविंग द चार्जेस। ड्राइविंग के लिए यहाँ पे इंटरनल एक अलोंग द वायर फोर्स चाहिए होती है, जी। ठीक है ना। तो अब आप जब यहाँ पे इसको आप इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट साइड पे V1 स्मॉलर है और राइट साइड पे V1 क्या हो गया, लार्जर होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स था, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही ना, द फोर्स विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द चार्जेस, उस साइड पे वो फोर्स कम हो जाएगा। जी। तो वही है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं प्रेशर के साथ, क्योंकि प्रेशर हमेशा साइड वाइज होता है, वो जो मैंने नोजल में बताया आपको, जी। साइड वाइज में बता दो, यहाँ पे होल्ड कर दे तो ऊपर आ जाएगा। और जो फ्लो है या जो वेलोसिटी है, उसको आप ये करंट के साथ एनालॉजी बना सकते हैं। So current ओके सर। analogous to velocity and voltage analogous to pressure. This is how you can understand that. यस। This is another application, wind tunnel test facility. ये जो गाड़ियों को टेस्ट करते हैं ना, wind tunnel या एयरक्राफ्ट्स को, तो you have a nozzle before the test section and then you have a diffuser. तो इस केस में उसको आप एक emulation कर सकते हैं if you want to feel कि ज़्यादा उसका विंड, बहुत ज्यादा विंड कैसे आप जो है ना वो एक जगह पे इमिटेट कर सकते हैं। और ये जो मॉडलिंग कंसिडरेशन है ये आप खुद कर ले, मेरे ख्याल में काफी मैंने डिस्कस किया है। इन इक्वेशन में जब भी किसी टर्म के नीचे लाइन ड्रॉ की होगी ना, ये नीचे, इसका मतलब ये है कि यूजुअली दैट कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए। ओके सर। So if we look at this example, let's say example 4.3 involves calculating the area at the exit.
सो अब इनलेट पे क्या क्या गिवन है, मैं भी यहाँ पे आपको सिर्फ स्कीम बताऊंगा क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है, और सारी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ. सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स दैट आर स्ट्रेटेजिक. मैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा. अच्छा, लेफ्ट साइड पे क्या क्या गिवन है आप नोट करें. प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है. तो यू नीड यू गेट टू, और ये फेज कौन सा है, स्टीम. स्टीम. अब स्टीम आपको पता है कि ये सेचुरेशन नहीं है ना. अगर आप टीवी डायग्राम में देखें तो आप इस रीजन में है, ये स्टीम है. वो जो है ना वो सेचुरेटेड इधर होगा, ठीक है, ये नहीं है. अब हमें पता था कि इस जगह पे आपको दो चाहिए ना इंटेंसिव वेरिएबल्स. तो अगर आपके पास एक प्रेशर है तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए. वन इज नॉट इनफ. वो दोनों इधर गिवन है. लेफ्ट एग्जिट इनलेट पे पी भी गिवन है और टी भी गिवन है. राइट साइड पे क्या है, सिर्फ प्रेशर गिवन है. ये तो वेलोसिटी है ना. Yes, sir. टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं है, which means No, that sir. if you want to look at some table, steam table, जो steam table हमने देखे थे, steam table में आप steam table को 1 के लिए यूज करेंगे तो कोई फायदा होगा या 2 के लिए. टू के लिए आप क्यों स्टीम टेबल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए ना. Yes, sir. वेलोसिटी तो उस टेबल में आपको नहीं नजर आएगी ना, वो तो और चीज है. सो इसका मतलब ये है कि टेबल को आप यूज करके यहां से आप एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते. और आपको पता है कि फ्लो में एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, ये नोजल टाइप का ही एग्जाम. इंसुलेशन का मतलब ये है कि आप क्यू डॉट को जीरो कर दें, मास ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है. H1 आप टेबल से कर लें. राइट साइड पे चूंकि आप टेबल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जी. और राइट साइड पे अगर आपको एंथैल्पी चाहिए तो वो कहां से मिलेगी, वो मास बैलेंस से मिलेगी, जो भी हमने डिस्कस किया. 1 और 2 पे जो मास बैलेंस है ना, कि टोटल क्वांटिटी एट द इनलेट मस्ट इक्वल टोटल, हम स्टेडी स्टेट अज्यूम करेंगे. नाउ व्हाई वुड दैट एंथैल्पी बी नीडेड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए. ये चाहिए. तो एरिया का एंथैल्पी से क्या ताल्लुक हो, खुद आप सोचें. हमें मास ट्रांसफर गिवन है और हमें Yes. पता है कि मास ट्रांसफर इज इक्वल टू 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी. वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड है, मास ट्रांसफर भी गिवन है. तो इसका मतलब यह है कि एरिया कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम. क्लियर. Yes, sir. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पता है कि दैट इज कनेक्टेड टू एंथैल्पी. जी. तो हमें अगर एंथैल्पी पता चल जाए एग्जिट पे तो हम उससे स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे. प्रेशर तो ऑलरेडी गिवन है और जिस टेबल से हमें एंथैल्पी मिलेगा उसी टेबल से हमें. अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी है कि हम यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं कि U का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, आप देख भी लेंगे टेबल से. Okay, sir. हाँ, तो मास ट्रांसफर अगर इसका if it remains steam, ये भी ध्यान में रखें, it remains steam, if we assume that U2 and U1 are equal, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी. अगर नहीं है तो उधर से आपको कोई
वो भी वो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इसमें वो स्मॉल यू क्यों नहीं आ रहा। नहीं, स्मॉल यू तो एच में आ गया बस, ठीक है। H2 सर exit। आपको नहीं, मैं सिर्फ ये कह वो रहा हूँ कि इसमें स्मॉल यू क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये है ना, ये आपको ये आ गया। और नहीं, एक मिनट, जब आपको H2 मिल जाएगा ना मास बैलेंस से, जी मास बैलेंस से आपको H2 मिल जाएगा, तो फिर आप टेबल देखें, उसके बाद आप टेबल देखें, यस सर क्योंकि टेबल के लिए आपको दो प्रॉपर्टीज चाहिए ना। एक प्रॉपर्टी आपको जी मिल गई तो उस टेबल 4 से आप फिर वेलोसिटी यहाँ पे रिकवर करेंगे। सो लेट मी रिपीट द स्ट्रेटजी, ये बहुत जरूरी है। You want to calculate the area. Area is connected to mass transfer and that requires specific volume. Specific volume is a property, और specific volume आप जो है ना exit 2 के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि एक प्रॉपर्टी उसमें मिसिंग है, टेम्परेचर मिसिंग है। तो उससे आप ये कैलकुलेट, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर टेम्परेचर, you connect the enthalpies between these two points using mass balance, using energy balance, first law of thermodynamics, and that H2 अब जैसे ही आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, एक P2 आ गया और एक क्या आ गया, हमने ये देखा ना कि हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं किसी भी सिस्टम को, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम को फिक्स करने के लिए। हमें दो मिल गई, तीसरी हम पे टेबल, वो टेबल इस इनिशियल स्टेज पे देखना फजूल है क्योंकि हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी हुई है। ये बात समझ आ गई? जी सर बस ये आपने सिर्फ ये स्कीमेटिक्स समझना है। अच्छा, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टरबाइन। अब टरबाइन आर ऑफ टू टाइप्स, और टरबाइन में भी आई वुड लाइक टू एक्चुअली रिमूव सम ऑफ द वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन्स। और वही है ना को, जिस तरह मैंने आपको नोजल वाली एग्जांपल दी थी ना कि वो हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी अगर आपको ये डायग्राम में बताऊं तो आपके जहन में क्या आएगा कि ये एक टरबाइन है। और लेट्स से टरबाइन टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गैस टरबाइंस, ठीक है ना, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइंस, और एक होते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक में वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, डैम्स जिस तरह होते हैं, हाइड्रो पावर। और दूसरा होता है गैस टरबाइन, जैसा स्टीम पावर प्लांट या वेपर पावर प्लांट। सो लेट्स से हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एयर फ्लो है या स्टीम है या जो भी है। तो टिपिकली अगर ये स्टीम है तो स्टीम का क्या ज्यादा होगा, स्टीम को हमने जब हीट किया तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हाई होती हैं बताएं, यू मस्ट रिमेंबर दैट। एक उसका टेम्परेचर लार्ज होगा और दूसरा यस प्रेशर प्रेशर भी लार्ज होगा ना, ठीक है ना। इट्स नॉट एन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस में तो आपको पता है ना कि वो नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लार्ज होंगे ना। इस साइड पे आप यहाँ पे स्टीम है तो T इज लार्ज, और आपको पता है प्रेशर भी लार्ज होता है। सो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टीम या जो गैस है, जब ये इसको हिट करेगी इन टरबाइंस के ब्लेड्स को तो इनको रोटेट करेगी, ठीक है। तो इनकी कौन सी एनर्जी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आप मुझे बताएं। सिग्निफिकेंट आमतौर पे हम क्या इमेजिन करते हैं और एक्चुअली क्या है? सर फिर सवाल करें, इसे कंपेयर करने। मतलब नॉर्मली जब आप ये देखते हैं ना, ये टरबाइन के ब्लेड्स देखते हैं और स्टीम आ रहा है, ठीक है, और स्टीम इसको कनेक्ट करके रोटेट कर रहा है,
तो जी आपके जहन में इस स्टीम की कौन सी एनर्जी है, विच एनर्जी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग दिस? वहां पे वो एनर्जी बैलेंस में वो देख ले कौन कौन सी एनर्जीज थी। एक v²/2 फॉर्म था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या था, एंथैल्पी, या और तीसरा क्या था, वो जो g टाइम्स z था ना, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी सर। और इसके बाद वो q डॉट और w, वो तो बाउंड्री फिनोमेना है ना, वो तो हमने बाउंड्री फिनोमेना किया था, वो ये स्टीम की वजह से नहीं होगा। अब पता है स्टीम वाली जितनी भी चीजें होंगी वो इसमें आएंगी, ये तो अदर जो लॉसेज हैं, हीट लॉसेज और वर्क ट्रांसफर, अदर वर्क ट्रांसफर इसमें होगा, लेकिन ये स्टीम जो मास ट्रांसफर है वो सिर्फ यहाँ आएगा। ठीक हो गया, m डॉट। अब इससे जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो W में आ जाएगा, ठीक है, W डॉट में, जो WC भी है। लेकिन आप मुझे बताओ इन तीनों में कौन सा डोमिनेंट है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, और बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो और व्हाट यू ऑलरेडी हर्ड? एंथैल्पी नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी होना चाहिए, क्योंकि वो हम स्टीम इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, उसका हाई जी प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। हम आम जी जो लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि बहुत हाई वेलोसिटी होती है। अब वो आपको समझ कैसे? अब आपको समझ आ गई कि विंड टरबाइंस इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं होते, क्योंकि विंड टरबाइंस में तो आप एयर को देख रहे हैं ना, एयर की एंथैल्पी जरूरत नहीं कि ज्यादा हो, जी तो वहां पे आप उसकी सिर्फ स्पीड पे रिलाई कर सकते हैं, यस सर। और ये जी फैक्टर तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है ना। जी So whenever we speak of thermal power plants, we will rely on this H, ठीक है। तो अब आप बताएं कि बिफोर आई गो टू द एक्चुअल मैथ, यहाँ पे H1 है और राइट साइड पे H2 है, ये करने के बाद तो H1 और H2 में कौन सा ज्यादा होगा, अब बताएं। जब ये स्टीम इधर से इंटरेक्ट करके इसको रोटेट करने के बाद ये इधर आ जाएगा, तो इस साइड पे H2 क्या H1 होगा, ज्यादा होगा। H1 ज्यादा होगा ना। हमने जी हमने इसलिए तो उसको कोल या न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके इसको कम किया। तो ये जो डिफरेंस है कहाँ पे जाएगी, ये this is how work is produced, okay? So यस the turbine is rotated at the cost of enthalpy, if you are talking about this. विंड टर्बाइन्स में आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड पे आप रिलाई कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। अच्छा, अब अगर हम हाइड्रोलिक टर्बाइन पे आ जाएं, दिस इज हाउ इट इज मेड, ओके। हाइड्रोलिक टर्बाइन इस तरह का होता है। अच्छा, और वहां पे हमने जो एंथैल्पी की बात की थी ना, ये भी बहुत जरूरी है। एंथैल्पी itself is has two terms, ठीक है। तो उसमें हमने टेम्परेचर अगर लार्ज है तो ये एनर्जी भी लार्ज होगी, और प्रेशर लार्ज है तो ये वाला टर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, so main contribution was from temperature and of course pressure as well, because high pressure means high temperature. अच्छा, now look at this. Let's say you have this reservoir on this side, और यहाँ पे अगर आपने इतना इस डेप्थ पे इसको कर दिया, तो जितना ये लेंथ ज्यादा होगा, हाँ, जी जितना ये लेवल ज्यादा होगा, इसको मैं L कह देता हूँ, लेट्स से L, तो इतना यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। जी और यहाँ पे यू आर नॉट रिलाइंग ऑन टेम्परेचर, ये हॉट वाटर नहीं है, जस्ट नॉर्मल वाटर, यस और सर। यहाँ पे इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक, यू आर नॉट रिलाइंग ऑन फ्लो। नाउ दैट will rotate this turbine and this has to be horizontal, ठीक है, क्योंकि यस वर्टिकल में आप इसका अपना ही वेट जो है ना उसका वो बर्दाश्त करना पड़ेगा।
सो अब जी जब लेट्स से ये वन साइड और ये टू साइड है, तो वन साइड से टू साइड पे जाते हैं, ऑफ कोर्स यू गॉट W डॉट फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? अगर ये P1 है और ये P2 है तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये पानी तो नीचे आ गया ना, ये ऊपर से नीचे जी आ गया, तो जब आप जी नीचे आते हैं तो प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज यस क्यों हुआ? व्हाई हैज इट डिक्रीज्ड? बताएं। सर उसकी डिक्रीज से तो सर वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। नहीं, बात ये है ना, यहाँ पे हम जब कहते हैं ना कि आप जब नीचे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वो तब जी होता है जब आप उसी रिजर्वायर में होते हैं, जब आप नीचे आते हैं तो यू हैव मोर वेट ऑन टॉप। यस सर। इसका प्रेशर इस पानी की वजह से है, ये पानी तो उस साइड पे नहीं है ना। नो सर। वो तो ऐसे ही है कि आप एक बाल्टी ऊपर से नीचे ले आए और आप कहें कि इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। यस सर। तो वो बाल्टी में जो प्रेशर है वो तो बाल्टी के अपने पानी की वजह से है। जी तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज यू आर एडिंग वाटर, हियर यू आर नॉट एडिंग एनी वाटर, वो तो वो पानी, थोड़ा सा पानी इधर आ गया ना। जी So you now you need to understand the difference between hydropower plants or hydraulic turbines and gas turbines, क्योंकि hydraulic turbines में you rely mainly on pressure, ठीक है, और of course you do rely on enthalpy but the main contribution is from pressure। और वहां पे जो है ना, क्योंकि हम ये भी पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर का सोर्स है वो ज्यादा पानी है, वहां पे प्रेशर का सोर्स वहां पे उसका टेम्परेचर है। ऑफ कोर्स ज्यादा स्टीम उधर भी चाहिए, लेकिन द लेवल ऑफ स्टीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको स्टीम को कोई बहुत ऊपर लेके नहीं जाना पड़ता। जी और इसका जो मास बैलेंस है हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। टाइम हो गया हमारा, यस ठीक है। जी सर हो। So I'll upload the assignment on Slate and Google Classroom, or then you guys should submit the your solution on जी preferably on Slate, ठीक है। अगर Slate नहीं चल रहा तो फिर आप Google Classroom पे कर दें। सर कब तक करानी है, कोई डेट या ट्यूसडे की टाइम? क्लास, ट्यूसडे की क्लास से पहले होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है बहुत आसान है, तो वीकेंड पे हो जाएगा। यस ठीक हो ठीक गया। है, ठीक, ओके, थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज।